God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. அழகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஹல்லேலூயா, ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. அப்பா அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். Loving Father, Lord, we thank you, Lord, for the wonderful day you given, Master. Loving Father, Lord, this service let bring glory to you, Lord, Master. The service, Lord, Master, from far away, the people who are watching, Lord, Master, let them be blessed by your name, Lord. Lord, you speak to their heart and mind, Lord, Master, through your word, Lord, Master. Oh, loving Father, we are nothing, Lord, Master, but your word have power, Lord, Master. Let your word heal the people, Lord, Master. Let your word give them peace, Lord Jesus. Lord Jesus, I given this service in your hand. Lord, let this service bring glory to you. We thank you, we praise your wonderful name. Praise the Lord. God is good all the time. All the time. God is good. आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ लैमेंटेशन 3:23 वचन में लिखा है, அவைகள் காலை தோறும் புதியவைகள், உமது உண்மை பெரியதா இருக்கிறது. Praise the Lord. Praise the Lord. विलाप गीत का किताब 3 अध्याय 23वां वचन, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ये समय परमेश्वर का कृपा का समय है. क्यों ये समय कृपा का समय है? பழைய ஏற்பாட்டு காலம், இந்த ओल्ड बुक समय पिता का समय था, पिता परमेश्वर का समय था. புதிய ஏற்பாடு न्यू बुक में यीशु मसीह का समय था. परमेश्वर यीशु ने 33.5 ईयर ये दुनिया में सेवा कर और अनेक अद्भुत कार्य किया था. उसका बाद पेंटेकोस्ट समय का बाद पवित्र आत्मा का समय आने लगा. लेकिन आज पिता परमेश्वर क्रिया करता है, यीशु और पवित्र आत्मा कार्य करता है. तो ये परमेश्वर पिता
यीशु और पवित्र आत्मा का ओर हमारे जीवन में कृपा के ऊपर कृपा के ऊपर कृपा के ऊपर दया मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए अभी ये समय है, हमारे जीवन में कृपा का समय है। हम बार बार बोलते हैं अभी हमारे जीवन में कृपा का समय है, कृपा का समय है। उसका मतलब हम जानना बहुत बहुत जरूर है, क्योंकि ओल्ड बुक का समय पिता परमेश्वर का समय था, उसका बाद यीशु मसीह का समय आया, उसका बाद पेंतेकोस्त का बाद पवित्र आत्मा का समय आया। लेकिन अभी अंत का समय है, पिता परमेश्वर, उसका बेटा यीशु और पवित्र आत्मा का क्रिया होता है। इसके लिए अभी हम कृपा का समय में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है एक्ट्स 4:33, प्रेरितों के काम 4 अध्याय वर्स 33। और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Praise the Lord. Hallelujah. Acts 4:33. விசுவாசிகளான திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதமும் ஒரே மனம் உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள். அவர்கள் எல்லோர் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது. Praise the Lord. Hallelujah. लोग के ऊपर परमेश्वर आत्मा का बारे में साक्षी देने के समय उनका साथ क्या बढ़कर रहता था? परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा, परमेश्वर का कृपा बनकर रहता था। ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये परमेश्वर का कृपा एक विशेष रूप है। ये कुछ काम का कुछ दाऊदी नहीं है, कुछ योग्य नहीं है। वो लोगों को परमेश्वर दया करता है, वो ये कृपा है। हम कुछ ये सेवा करने के लिए हम तैयार योग्य नहीं है, हम ये प्रचार करने के लिए योग्य नहीं है, हमारे लिए बुद्धि नहीं है, हमारे लिए ज्ञान नहीं है, हम अनपढ़ है, लेकिन परमेश्वर का कृपा हम पाया है। वो परमेश्वर का दया है, वो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब यही है। कोई वो जॉब को करने के लिए उसको क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो इंसान को जॉब मिलता है, वो परमेश्वर का दया है, वो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह का हम जानना बहुत बहुत जरूर है। इसके लिए ये परमेश्वर का अनुग्रह विशेष है। वो किसको जीवन में मिलता है वो आशीष पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर इस्राएल लोग हर दिन सुबह सुबह परमेश्वर को खोज में रहने के लिए आशा करता था, क्योंकि हर दिन परमेश्वर का कृपा नया था। तो परमेश्वर इस्राएल लोग को हर दिन कृपा देने के लिए, इस्राएल लोग को हर दिन उसको मिलने के लिए हर दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उनको मना दिया था। तो वो लेट होता था, उसका फेंसिंग निकल जाता था और वो क्या होता था, मेल्ट होता था। तो लेट होता है, उसको एक सेफ्टी नहीं था। इसके लिए अर्ली इन द मॉर्निंग परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए वो मन्ना रखा था। वचन में लिखा है मैथ्यू 13:5 और 6। मत्ती का किताब 13वां अध्याय 5वां और 6वां वचन। हाँ, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, हाँ, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, हाँ, और गहरी मिट्टी न होने के कारण हाँ, वे शीघ्र उग आए, हाँ। परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए हाँ, और जड़ न पकड़ने के कारण हाँ, सूख गए। हाँ। Matthew 13:5 and 6. சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை இடரில் விழுந்தது. மண் ஆழம் இராததினால்
அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது. வேர் ஏறின போது தீந்து போய் வேர் இல்லாமல் உலர்ந்து போயிற்று. धूप आने से ये क्या हो गया? ये जमीन पर गिरा सीड भी क्या हो गया? सूख गया, सूख गया। ऐसे परमेश्वर इस्राएलियों के लिए सुबह सुबह वो मन्ना देने के लिए इस्राएलियों को पर कृपा किया। वो थोड़ा लेट जाता था, वो मन्ना वो लोग को नहीं मिलता था। एक्सोडस 16 verse 21। निर्गमन का किताब 16वां अध्याय 21वां वचन। हाँ और वे बोर होने को हाँ अपने अपने खाने के अनुसार हाँ प्रतिदिन बटोर लेते थे, हाँ परंतु धूप तेज होते ही हाँ वह गल जाता था। हाँ क्या होता था? धूप आने में क्या होता था? गल जाता था। तो धूप आने में परमेश्वर उसको ऊपर रखा, एक फ्रिज में रखा, लेके आया। देखो फ्रिज में रखा एक चीज रहने के टाइम, निकलने के टाइम वो कैसा रहता है? एक कवरिंग उसके ऊपर रहता है। वो थोड़ा समय दूर रखने, बाहर रखने के बाद वो क्या होता है? वो मेल्ट हो जाता है। ऐसा परमेश्वर स्वर्ग से इनको मन्ना भेजने के टाइम एक कवरिंग का साथ भेजा था। वो कवरिंग निकलने के पहला परमेश्वर इस्राएलियों को बोला था जाके उसको पाले, पिता कर ले। लेकिन वो लोग को लेट होता था और परमेश्वर उसको रखा, सेफ्टी निकल जाता था और मिट जाता था। हमारे जीवन में भी वही है। हम परमेश्वर को अर्ली इन द मॉर्निंग हम जाने के समय है, परमेश्वर का अनुग्रह हर दिन हमारे लिए नया रहता है। कैसा इस्राएल लोग हर दिन परमेश्वर सुबह सुबह हर दिन मन्ना दिया था, ऐसा हम भी हर दिन हमारा सुबह के समय हम परमेश्वर का सामने जाने के समय हर दिन हमारा परमेश्वर का कृपा हमको मिलता है, हम उसको पाता है। लेट होता है, धूप आता है, वो क्या हो जाता है? नहीं मिलता है। तो परमेश्वर का कृपा हर दिन तुम मिलने के लिए, तुम्हारे लिए पाने के लिए, you have to go every day early in the morning presence of the Lord। वचन डाला बोलता है, वचन स्वीकार किया है, वचन जल्दी क्या हो गया? रूट भी आ गया है। लेकिन वो मजबूत नहीं है, धूप आया सूख गया। कारण क्या है? वो हर दिन थोड़ा दिन के लिए अर्ली मॉर्निंग नहीं, उसमें क्या मिट्टी था, रूट आया था, बड़ा भी थोड़ा ऊपर भी आ गया था, लेकिन फिर क्या हो गया था? धूप आ गया और वो सूख गया। हम अनेक लोग ऐसे है, बहुत आने के समय, परमेश्वर से आने के समय, थोड़ा वचन सुनने में थोड़ा समय, अर्ली मॉर्निंग विल स्टार्ट द प्रेयर। वो थोड़ा दिन कंटिन्यू, वो थोड़ा दिन अच्छा खुशी रहता है, अच्छा आनंद रहता है, अच्छा विश्वास रहता है, सब कुछ रहता है। फिर थोड़ा दिन में धूप आना लगता है, प्रेयर में धूप आना लगता है, उठने में धूप आना लगता है, हमारा काम शुरू होने में धूप आना लगता है, फिर वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। हमारा जीवन ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमारा जीवन हर दिन परमेश्वर का सामने अर्ली इन द मॉर्निंग परमेश्वर का कृपा को पाने के लिए हम वैराग्य से, परमेश्वर को पर परिपूर्ण प्यार से, विश्वास में हम जाना बहुत बहुत जरूर है। तो परमेश्वर का स्वर्गीय मन्ना ये धूप में मिट जाने का पहला आपको मिल जाएगा। वही ये परमेश्वर का हर दिन का कृपा है, कृपा है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 19 verse 14। भजन संगीता का किताब 90 अध्याय 14वां वचन। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर,
हाँ, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। Praise the Lord. நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும். நம்மளது வாழ்நாள் எல்லாம் आनंद से खुशी से रहने के लिए हर दिन परमेश्वर का कृपा हमारे लिए जरूर है। वचन में क्लियरली लिखा है, நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும்। परमेश्वर का कृपा का बिना हमारे लिए वो आनंद नहीं है। वो आनंद हमारे लिए थोड़ा दिन नहीं चाहिए, हमारा जीवन रहने तक हमारे लिए वो चाहिए। வாழ்நாள் எல்லாம் हम आनंद से खुशी से रहने के लिए परमेश्वर का कृपा, काले कृपा हमारे लिए आवश्यक है। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर पिता परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी यीशु मसीह हर दिन वो मुख्य समय सुबह का समय को अलग रखता था। अलग रखकर मार्क में जाएंगे, मार्क 135 क्या करता था? पिता का साथ मिलकर बात करता था। मार्कुस का किताब पहला अध्याय वर्स 35। भोर को जब अंधेरा ही था, वह उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। 35 वचन में लिखा, அவர் அதிகாலையிலே இருட்டோடு எழுந்து புறப்பட்டு வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்கு போய் அங்கே ஜெபம் பண்ணினார்। परमेश्वर यीशु क्या करता है? हर दिन पहला का समय को सेपरेट रखा था। काय के लिए सेपरेट रखा था? पिता परमेश्वर को मिलने के लिए, उसका साथ बात करने के लिए, उसका सामने प्रार्थना करने के लिए। तो हमारे जीवन में हर दिन सुबह समय वो कृपा मिलना जरूर है क्या? नहीं, जरूर है। तो हर दिन परमेश्वर का कृपा हमारे लिए नया मिलेगा। हमारा जीवन अंत तक हम आनंद से जी सकता है। इसके लिए हमारा मन में, हमारे जीवन में एक वैराग्य रहना चाहिए, एक वांछा, एक प्यासा रहना चाहिए। परमेश्वर का हर दिन हम सुबह मिलकर वो दिन के लिए वो कृपा परमेश्वर से लेने के लिए हम आशा करना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे नबी उसका अनुभव से कहता है, ऐसा 50 वर्स 4। आइजाया का किताब 50वां अध्याय 4था वचन। हाँ, प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीत दी है हाँ, कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। हाँ, प्रतिदिन भोर को हाँ। वह मुझे जगाता हाँ। और मेरा कान खोलता है कि मैं शिशु के समान सुनूं। Praise the Lord. இளைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்து கேட்ட வார்த்தையை சொல்ல நான் அறிவிக்கும்படிக்கு கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு கல்விமானி நாவை தந்தருளினார்। காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார்। கற்றுக்கொள்கிறவர்களைப் போல நான் கேட்கும்படி எனது செவியை கவனிக்க செய்கிறார்। ऐसा नबी के अनुभव को देखो। ऐसे नबी कहता है हर दिन सुबह मेरे को परमेश्वर क्या करता है? जगाता है। हम अनेक लोग परमेश्वर ऐसा जगाता है लेकिन हम समझता नहीं है। हम घड़ी क्यों देखता है और हम सोचता है और थोड़ा समय है, बहुत जल्दी है, और हम वापस सोना लगता है। वापस सोना लगता है। खिड़की से धूप आंख में देखना चाहिए। खिड़की में धूप दिखता है, उसका बाद हम बेड से उठता है। ऐसा नहीं है। हम कृपा को पाने के लिए, परमेश्वर का कृपा तुम्हारे जीवन में मिलने के लिए
आप हर दिन परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में पहला समय को देना जरूरी है, देना जरूरी है। तो आपका जीवन में क्या चीज मिलने के था, आपको वो मिलने के आप उसका योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको दे सकता है। वो परमेश्वर का दया है, वो जगह में आपको कार्य कर सकता है। वो थोड़ा दिन में आप नहीं सोचना चाहिए वो क्या हमको मिला नहीं, वो कभी आपको मिलना चाहिए, परमेश्वर जानता है। 15 साल हम ये जगह में था, वो समय हम सोचा था हम पास्टर बनेंगे, नहीं सोचा। हम पास्टर बनने के हम योग्य था, नहीं था। हम एक हाउस वाइफ था, हमारे साथ कुछ भी डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ करके दिया क्या नहीं? वो एक दिन 2 दिन का ओनली मॉर्निंग का कृपा नहीं, अनुग्रह नहीं है, 15 साल का अनुग्रह का कृपा है। वो इतना बड़ा स्थान मेरे जीवन में परमेश्वर दिया है। इसके लिए आप ये मत सोचो 1 साल पूरा मैं परमेश्वर को सुबह सुबह ढूंढा, मेरे को क्या मिला? मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूं, मेरे लिए क्या मिला? जरूर परमेश्वर रखा है तुम्हारे लिए, जरूर रखा है परमेश्वर। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए, वो सच्चा है परमेश्वर। 15 साल देखो, मुस्लिम लोग का आवाज सुनने के पहले मैं उठकर हमारा परमेश्वर का नाम लेने का वैराग्य से प्रार्थना करता था। और देखो ये पोस्ट को मैं योग्य नहीं था, पास्टर बनाया, सर्टिफिकेट मिला, रजिस्टर मिला, सब कुछ। एक डिग्री पढ़कर, एक बाइबल कॉलेज पढ़कर क्या क्या वो लोग नहीं मिलता है, वो सब परमेश्वर हमारे लिए दिया है। कोई परमेश्वर का अनुग्रह है। ऐसा आपका जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकता है। याकूब ने क्या देखा? सुबह सुबह एक सीढ़ी देखा, सीढ़ी के ऊपर क्या देखा? स्वर्गीय राज्य खुला देखा। वो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। वो सीढ़ी कौन है? परमेश्वर यीशु है। वचन में लिखा है John 10:9। यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 9वां वचन। द्वार मैं हूँ, हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है हाँ, तो वह उद्धार पाएगा हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा हाँ। और चारा पाएगा। நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளே புறம்பே சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான்। और in the morning लैडर दिखाकर स्वर्गीय राज्य का दरवाजा को खोलकर रखकर याकूब को दिखाया परमेश्वर आपके लिए भी स्वर्गीय दरवाजा को खोल सकता है। परमेश्वर कहता है मैं क्या हूँ? द्वार हूँ। ऐसाया 26:2 देखेंगे। ऐसाया का किताब 26वां अध्याय 2 वचन। हाँ, फाटकों को खोलो, फाटक को खोलो कि एक धर्मी जाति, एक धर्मी जाति अर्थात सच्चाई का पालन करने वाली जाति हाँ प्रवेश करे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சத்தியத்தை கைக்கொண்டு வருகிற நீதி உள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசலை திறவுங்கள்। कौन सा दरवाजा खोलेगा? स्वर्गीय राज्य का दरवाजा खोलेगा। किसके लिए? किसका जीवन में परमेश्वर का कृपा मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? कृपा मिला है।
किसका जीवन में कृपा मिला है, वो लोग कैसा लोग परमेश्वर बना देता है. सत्यத்தை கைக்கொண்டு வருள்ள நீதி உள்ள जाति. दुनिया तेरे को अनेक झूठ बोल सकता है. याकूब कोई अच्छा इंसान नहीं है. याकूब इज अ लायर, याकूब इज अ चीटर. लेकिन याकूब को क्या मिला? परमेश्वर का कृपा मिला. हालेलुया, हालेलुया. ऐसा हम अच्छा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे लिए हमारे परमेश्वर को कृपा मिलता है. तुम परमेश्वर का नजर में सत्य जाति बनता है. याकूब अच्छा था, उसका भाई की बसाया, वो झूठ बोला, वो चीटिंग किया वो, लेकिन परमेश्वर को सुबह सुबह ढूंढने का आदत उसका अंदर था. वो ढूंढा, वो सीढ़ी को देखा, सीढ़ी के ऊपर स्वर्गीय दरवाजा उसके लिए खुला देखा और उसको परमेश्वर का कृपा मिल गया. वही हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है. We may be not worthy for it. हम उसके लिए योग्य नहीं रहेंगे. We may be liar, we may be cheating, we may be doing many wrong things. बट आपको परमेश्वर को कृपा मिलना बहुत बहुत जरूरी है. वो याकूब को मिला है. परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो सत्य जाति अंदर आने दे, दरवाजे को खोले, इन्हें उसको कृपा दिया है. हालेलुया, हालेलुया. वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है. हालेलुया, हालेलुया.